Okay. Hi everyone. So today we are here to study about the chapter which CBSE has kept this year for the internal assessment. I have already given you the assessment and then you have to start working on it. The life cycles, the biogeochemical cycles of carbon, nitrogen and oxygen that we discussed previously. Today we are going to discuss this chapter. Maybe this year CBSE has removed it from your syllabus, but then you need to know about it. And internal assessment, I can always take a quiz or a Google form sheet, something like that, right? So what do you mean by the word natural resources? Natural means जो कि प्रकृति में already present है, the nature is providing you. Resources are the things that we use for our benefit. We means the mankind, है ना? So we use air for breathing. All the living organisms use air for breathing. We use soil to grow food for us as well as for the other animals, or other animals also eat that, and then the food chain continues. Water we use to drink because 70% of human body is made up of water, and all the other animals, the maximum portion of their body is made up of water. Fruits में up to 98% of their body is made up of water, right? So what I want to say here is water is also very important for life, and that is why even Earth is known as blue planet. ठीक है? Then other natural resources, आपका fossil fuel which you use for moving your vehicles, machinery, factories, etc. वाटर का भी हमने सिर्फ एक ही यूज बताया आपको, एयर का भी एक ही यूज बताया. But while we'll move in this chapter, we'll study about like how our life depend upon these natural resources, right? So these are the resources. Let's move further. Let's begin with the air. Air, without atmosphere, आपका life exist करेगा ही नहीं. The breath of life, air, right? We know it because of the air we are able to breathe. Every organism, every living thing, be it plant, be it animal, they breathe, है ना? वो सांस लेते हैं. ऑक्सीजन रिच एयर का कॉम्पोजिशन क्या है? 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% मिक्सचर ऑफ गैसेस. In that we have 0.03% of कार्बन डाइऑक्साइड, और उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड इनफ है अर्थ पे लाइफ सस्टेन करने के लिए. कैन यू इमेजिन इफ देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड, देयर इज नो लाइफ ऑन अर्थ? हाउ कैन यू प्रूव दैट? Because green plants utilize that carbon dioxide to make our food for everything. Yes or no? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ना? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज मेड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. तो उसी तरह से हवा में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस ग्रीन प्लांट्स बना करके रखते हैं. ठीक है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, अर्थ पे लाइफ सस्टेन कर रही है. अगर ये 0.04 हो गया तो प्रलय आ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी. अभी 0.04 हम लोग पहुँचे नहीं है, पहुँचने वाले हैं, बट दी होल वर्ल्ड इज कंसर्न कि अगर 0.04 हो गया तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी. ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड जरा सी भी बढ़ गई तो क्या होगा. तो हाउ डू वी मेंटेन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? पहला होता है कि ग्रीन प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए ताकि वो ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करें और उसको कन्वर्ट कर दें फूड में, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में. ठीक है? दूसरा कैसे इसका यूज होता है? जितने भी मरीन एनिमल्स हैं दे यूज कार्बोनेट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट. तो
शेल्स क्या होते हैं? बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि पानी में डिसॉल्व होती है, उसी से ही तो चाहे वो सीपी हो, चाहे वो शंख हो, है ना, और भी बहुत सारे सी एनिमल्स, मरीन एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी शेल बनाते हैं। वो किस चीज से बनाते हैं? यही कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सॉल्ट के फॉर्म में सी वाटर में घुली हुई होती है, ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको जान लो कि ये रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग के यहाँ अगर आजकल विंटर्स आर गोइंग ऑन and if we have the maximum temperature say 21-22 degrees centigrade, then how much would be the minimum? 10, 11, 9, 7. ऐसा तो नहीं होगा कि मिनिमम -40 और मैक्सिमम 40 है। इतनी टेम्परेचर वेरिएशन तो नहीं है। इसका रीजन क्या है कि अर्थ के चारों ओर एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और उस एटमॉस्फेयर की वजह से जो सनरेज पूरी तो आती भी नहीं है, पूरी आ गई तो ऐसे ही जल जाएगा आदमी, है ना, 1% ही आती है। और जो आती है वो अगर अर्थ को वार्म करती है तो पूरी की पूरी वापस नहीं चली जाती है। अगर क्योंकि हमारे पास एक एनवेलप है एटमॉस्फेयर नाम का, जिसने अर्थ को चारों ओर से कवर करके रखा हुआ है ना। कैसे, आपको बताती हूँ। अगर जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, जैसे मरकरी हो गया, हाँ, वीनस हो गया, मार्स हो गया, इन पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इनका दिन का टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड 400 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है, और रात का टेम्परेचर इनका कितना हो जाता है? इट गोज डाउन टू -180 -100। तो इतने टेम्परेचर वेरिएशन में तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा। हमारे यहाँ क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो हमारे यहाँ विंटर्स में टेम्परेचर रेंज क्या हुई? मैक्सिमम हो गई जी, चलिए 21-22 डिग्री सेंटीग्रेड, मिनिमम हो जाएगी 7, 8, 9। इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर है। चलो लेट अस अंडरस्टैंड एटमॉस्फेयर ये काम करता कैसे है। उसके लिए अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं हो तो हमारी दिन का टेम्परेचर जाएगा 110 डिग्री सेंटीग्रेड, रात का टेम्परेचर जाएगा -190 डिग्री सेंटीग्रेड। कैन एनी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन दिस टेम्परेचर रेंज? नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्योंकि एटमॉस्फेयर है, इसलिए हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। बहुत अच्छा एक एक्टिविटी है कि आपने 3 लिए बीकर, एक बीकर फुल ऑफ वाटर है, दूसरे में बीकर इज फुल ऑफ सॉइल और सैंड, और तीसरे बीकर में एक थर्मोमीटर है बट वो बीकर बंद है। तीनों को हमने सनलाइट में रखा, ठीक है। इज द टेम्परेचर रीडिंग more in activity 1 or 2? Okay. Based on the above finding, which would be hot faster, the land or the sea? आपने क्लास 7th में पढ़ा है, किसकी हीटिंग फास्ट होती है? लैंड की। वेरी गुड। लैंड की हीटिंग फास्टर होती है, तो जो बीकर नंबर 2 था उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। वाटर स्लोली हीट करता है और स्लोली ही कूल डाउन करता है। What about the temperature of the thermometer which was closed inside a bottle? The temperature would be more. क्यों? आपने ये डेली एक्सपीरियंस किया है। आपकी बस स्कूल वाली अगर वो दिन भर खड़ी हुई है गर्मी के दिनों में, आप डोर खोल के घुसते हो बस में, या आपकी कार दिन भर पार्क थी, आपने खोला और वो एकदम से आपको टेम्परेचर का फ्लक्स आएगा, आता है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ की एयर जो थी वो बाहर रेडिएट नहीं हो पाई। तो यही हमारा एटमॉस्फेयर है। हम लोग को 2 तरीके की सनलाइट आती है। एक आती है अल्ट्रावायलेट रेज जो कि ज़्यादातर रिफ्लेक्ट कर जाती है ओजोन लेयर से, दूसरी आती है इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से बड़े अच्छे दोस्त होते हैं।
जैसे ही इंफ्रारेड रेडिएशन आए, कार्बन डाइऑक्साइड ने उससे दोस्ती कर ली और इंफ्रारेड वहीं रुक गई और हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगा। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ही ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन होगा, अर्थ का जनरल टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ग्लेशियर्स मेल्ट करने लगेंगे, सी लेवल राइज करने लगेगा, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग डेंजरस है। तो जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ये हम लोग बंद गाड़ी अगर गर्मी के दिन में खड़ी हुई है, इवन विंटर्स में भी बड़ा अच्छा लगता है, बाहर तो ठंडा बट कार के अंदर गर्म था, क्योंकि कार के अंदर का एयर जो है वो वार्म अप हो गया है, हीट अप हो गया है। ठीक है, तो हम लोग का एटमॉस्फेयर भी ऐसे है, ये एक एनवलप है और जो भी हीट इंफ्रारेड रेडिएशन आती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड रोक लेती है और एनवलप जो है वो बाउंड्री वॉल है, ये वापस नहीं जा पाती है, इसलिए अर्थ का टेम्परेचर मोर और लेस मैक्सिमम और मिनिमम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, अगर अर्थ राउंड लगाते लगाते सन के पास में है तो समर्स हैं, दूर है तो विंटर्स है, ये तो आपको पता ही है ना। तो चलिए, दूसरा होता है कि एयर या विंड जो है वो मूव कैसे करती है, ये आपको भी पता है, अगेन क्लास 7, ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड वाटर, है ना। अर्थ की ज्योग्राफी में प्लेटू भी है, प्लेन्स भी है, वाटर बॉडीज भी हैं, है ना, माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं। तो आपने देखा था क्लास 7th में, कोस्टल एरिया लेते हैं, आपको पता है लैंड बहुत स्पीड में गर्म होता है और उतनी ही स्पीड में ठंडा होता है ना। और वाटर धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। एयर की टेंडेंसी क्या होती है कि जैसे ही एयर, क्या कोई भी चीज़, गैस, जैसे ही वो गर्म होगी वो हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। ठीक है, और उसकी जगह खाली तो वैक्यूम है नहीं, जो ठंडी हवा है वो उसकी जगह आती है। तो आपने अगेन आई एम रिपीटिंग क्लास 7th ओनली, यू हैव स्टडीड दैट लैंड हीट्स अप फास्टर। ठीक है, दिन में लैंड की एयर जो थी वो उतनी तेजी से गर्म हुई, ऊपर उठी और समुद्र की तरफ से ठंडी हवा फिल इन द ब्लैंक करने आ गई। क्या हो गया ये? सी ब्रीज। ठीक है, सी की तरफ से लैंड को चलने वाली सी ब्रीज। रात में क्या हुआ? लैंड जितनी तेजी से गर्म हुआ था उतनी तेजी से ठंडा हो गया। पानी धीरे धीरे गर्म हुआ था तो अब वो धीरे धीरे ही ठंडा होगा। तो लैंड के कंपैरिजन में पानी अभी गर्म है, तो उसके ऊपर की एयर गर्म होके ऊपर उठ रही है और उस खाली जगह को भरने के लिए लैंड की तरफ से हवा मूव कर रही है। ये हो गई लैंड ब्रीज। ठीक है, तो अर्थ की अनइवन हीटिंग, और हम छोटे मोटे टुकड़े की बात नहीं कर रहे हैं, अर्थ एज अ मास हम बात कर रहे हैं। ह्यूज एरिया, डिपेंडिंग अपॉन द लैटिट्यूड जिस पे अर्थ का वो हिस्सा है, एयर का मूवमेंट होता है, विंड का मूवमेंट होता है। आपने क्लास 7th 8th में सब पढ़ा हुआ है कि किस तरह से साइक्लोन्स बनते हैं, है ना। अनइवन हीटिंग की वजह से एयर ऊपर जाती है, प्रेशर डेवलप होता है, हर तरफ से एयर बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई, बहुत ज़्यादा एयर ऊपर चली गई, चारों ओर से ठंडी हवा तेजी से आई और वो रोटेट करने लगी, साइक्लोन बन गया, है ना। लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया आपने न्यूज़ में सुना होगा। अगर कहीं कुछ घंटी बज रही है तो, नहीं बज रही है कोई बात नहीं, ठीक है, चैप्टर रीड करिएगा। तो ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ the air currents move। ठीक है, ओके, देयर आर मेनी एक्टिविटीज। रेन भी आपका इसी तरह से है कि आपको भी पता वाटर साइकिल है ये, कि ड्यू टू द हीट द वाटर इवेपोरेट्स, गोज अप ऑन द हायर एल्टीट्यूड्स, उसका कंडेंसेशन होता है, डस्ट पार्टिकल्स के संग में मिलके बहुत सारी एयर ड्रॉपलेट्स मिल करके क्लाउड्स बनाती हैं। जब क्लाउड्स का सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है तब
बारिश होती है। ठीक है, तो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं जब बारिश होती है? प्रेसिपिटेशन। ठीक है, आपने ये भी सुना होगा कि दिल्ली में इस समय जहाँ पे भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और विंटर पड़ रहा है, ठंड पड़ रही है, वहाँ पे स्मॉग की प्रॉब्लम होती है। स्मॉग, फॉग क्या होता है कि जी इवेपोरेशन हुआ, लेकिन क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा थी, वाटर ड्रॉपलेट्स जो थी वो नीचे नीचे ही रह गई, क्लाउडी हो गया, वो हो गया आपका फॉग। लेकिन अगर इसी में ही स्मोक पार्टिकल्स भी हैं, पॉल्यूशन बहुत था, स्मोक पार्टिकल्स भी थे, ठंडी हवा थी, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन हुआ और धुंध जो थी वो काली धुंध हो गई, स्मॉग हो गया। स्मोक प्लस फॉग इज स्मॉग। ठीक है, तो इसीलिए दिल्ली में बारिश, अरे जाड़े के दिनों में पोल्यूशन नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि ठंड की वजह से हवा ठंडी हो जाती है, ऊपर नहीं जा पाती है, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो स्मोक पार्टिकल्स के संग मिलके स्मॉग बना लेती हैं, काला काले धुंध दिखने लग जाती है। उसके लिए कहते हैं कि आर्टिफिशियल रेन कराई जाए, या आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से साउथ की तरफ से बारिश आती है और विंटर्स में हफ्ते 10 दिन बारिश होती भी है, जो कि हमारी गेहूं की क्रॉप के लिए बहुत अच्छी होती है, मानी जाती है। ठीक है, तो वो बारिश अगर दिल्ली में एक आध दिन भी हो गई तो पोल्यूशन लेवल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बारिश की ड्रॉपलेट्स की वजह से सारा का सारा स्मॉग जो था या स्मोक पार्टिकल्स थे वो नीचे नीचे आ गए, बह गए। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एयर पोल्यूशन, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। ये आप देख लीजिए, सैटेलाइट पिक्चर्स शोइंग क्लाउड्स ओवर इंडिया। सैटेलाइट पिक्चर्स इसी तरह से आप जैसे साइक्लोन लास्ट ईयर इंडिया में, दिस ईयर बहुत सारे आए, लेकिन हम लोगों ने सैटेलाइट पिक्चर्स की वजह से उनको पहले ही रीड कर लिया, और जिसकी वजह से हम लोगों ने एरियाज इवैक्यूएट कर लिए एंड लॉट ऑफ लाइफ कुड बी सेव्ड बिकॉज ऑफ दिस। Now air pollution में one thing is that okay, lichens are there which speak about air pollution. So lichens are used at places to detect that how is the air quality, है ना। और after this we have acid rain। ठीक है, उसके बाद हम लोग वाटर कल पढ़ेंगे। We have acid rain here, and what happens in the acid rain? What happens in the acid rain? जो ये पोल्यूशन था, है ना, बहुत ज़्यादा स्मोक पोल्यूशन हुआ, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हुआ, अब सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब ऊपर तो है ना। जब बारिश हुई तो ये बारिश के साथ उन्होंने क्या हुआ, पानी की बूंदों के साथ में लाइक SO2 plus H2O will become H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर कार्बोनिक एसिड। तो ये सारे एसिड पानी के ड्रॉपलेट्स के संग मिलके बन गए और ये बारिश की बूंदों के संग नीचे आ गए। ये कौन सी बारिश हो गई हमारी? एसिड रेन। वेरी गुड। सो दिस इज हाउ एसिड रेन टेक्स प्लेस, एंड एसिड रेन इसको ही बोलते हैं। ऑफ कोर्स एसिड की आपको पता है, आपके घर में इन्वर्टर्स लगे होंगे इन्वर्टर की बैटरी में आपने देखा होगा कि पानी आप डालते हो और अगर वो एसिड जो है कहीं पे भी गिर जाता है वो जगह जल जाती है, कोरोड हो जाती है ना, इट कॉजेस कोरोजन। तो उसको हम लोग एसिड का मतलब टेंडेंसी क्या है कि ये जहाँ पर भी पड़ेगा उस जगह को बर्न कर देगा, है ना। दैट इज वाई जब आपके प्रैक्टिकल शुरू होंगे, आप लैब में जाएंगे तो आपको बहुत ही डाइल्यूट एसिड से काम करने को बोला जाएगा, आपको लैब कोट पहनने को बोला जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर डायरेक्ट कपड़े पे या स्किन पे पड़ गया तो स्किन जल जाएगी, है ना। लोग आपको पता ही एसिड अटैक्स होते ही हैं। ठीक है, तो विच इज़ अ रॉन्ग थिंग ऑफ कोर्स। और ये हो गया। उसके बाद हाँ, तो ये एसिड रेन हार्मफुल कैसे है?
पहली चीज़ जिस भी बिल्डिंग पे पड़ेगी उसको कोरोड कर देगी, उसको डी शेप कर देगी, है ना। आपको पता है अगर मार्बल के ऊपर ये एसिड रेन पड़ती है, हल्की सी शुरुआत होगी तो मार्बल का कलर वाइट से येलो हो जाएगा। एग्जैक्टली, एंड दैट इज नोन एज दैट इज ताजमहल। यस, थैंक यू वेरी मच। सो दैट इज नोन एज मार्बल कैंसर, ठीक है, क्योंकि वो पूरी की पूरी मार्बल को खराब कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए, उन्होंने ताजमहल के 2 किलोमीटर के पेरीफेरी से सारी इंडस्ट्रीज को हटा दिया। इवन आगरा से ही उन्होंने इंडस्ट्रीज जो ऐसी पोल्यूशन कर रही थी, एयर पोल्यूशन, उनको हटाया, क्योंकि ताज जो है वो येलो पड़ रहा था, एंड दैट इज नोन एज मार्बल कैंसर। जिस भी बिल्डिंग पे पड़ेगी ये एसिड रेन उसको डी शेप कर देगी, उसको डिजेनरेट कर देगी, है ना। पानी में पड़ेगा तो पानी का एक बैलेंस्ड पीएच वैल्यू होती है ना ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक, न्यूट्रल पानी। अगर वो पानी एसिडिक हो गया तो ऑब्वियसली जो भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके ऊपर में भी फर्क पड़ेगा। क्यों, आपको थोड़ा सा एसिडिक पानी पीने को देंगे, आप पियोगे क्या, पूरा अंदर कट जाएगा। तो फिर हम एसिड रेन जिस भी वाटर बॉडी में गिरेगी वहाँ के एक्वाटिक एनिमल्स डेफिनेटली दे विल बी हार्म्ड, राइट। अगर ये एसिड रेन किसी जमीन में पड़ रही है, खेत में पड़ रही है, तो खेत की भी एक न्यूट्रल पीएच वैल्यू है ना। तो वहाँ पर भी क्या होगा, जो सॉइल होगी वो एसिडिक हो जाएगी, तो डेफिनेटली जो क्रॉप्स हमने ग्रो करी है वो प्रॉपर उनकी ग्रोथ नहीं होगी। सो दीज आर दी हार्म्स। किसी भी चीज पे पड़ेगी, आप पे, हम पे, जानवरों पे, पेड़ पौधों पे एसिड है, जहां पड़ेगा वहां कोरोजन करेगा, जहां पड़ेगा वहां पर ही उसको जला देगा, इट विल बर्न, एंड दैट इज व्हाई एसिड रेन्स आर वेरी हार्मफुल. So children, this was all about air and how can we prevent air pollution by keeping the servicing of the engine, by not using the unnecessary vehicles, by doing carpool or using public transport, कितना कम से कम pollution हो, है ना, and by not burning the things. जो भी आप क्रैकर्स बहुत एक्सेस में कर रहे हो, आपको भी पता है ना, या आप पॉलिथीन जला रहे हो, जो भी, ये स्मोक क्या है, इट इज कॉजिंग एयर पोल्यूशन. एंड लास्टली, प्लांट मोर एंड मोर trees so that our environment is clean. ठीक है. So this is all about air pollution, usage of air. आपको पता है यूजेज क्या क्या है. बेसिकली हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, देन फ्लाइंग के लिए, आपका विंड एनर्जी के लिए, है ना, we use air for drying clothes. You can imagine there are so many things that we do by using the air. Uneven heating of air की नहीं है तो हवा ही नहीं चलेगी, हवा नहीं चलेगी तो बादल नहीं उड़ेंगे, बारिश नहीं होगी, है ना, पूरा क्लाइमेट ही डिस्टर्ब हो जाएगा. So air plays a very important role, right? This is all for today. Thank you very much.